अब चलिए, in the last class we were having an understanding of the J2EE concept. We understand this figure, how J2EE is able to work within our environment by the application client with the help of the client and machine, client end or client machine. We have application can and web browser, and then at the server end we have servlet, different web container in the web container, and we have web pages developed by JSF and JSP. Then we have the enterprise Java beans. Enterprise Java beans can connect directly to the application client, and for the web browser we need to connect with the servlets as well. Then we have also a EJB container. So Java server has been divided into various containers, and these containers have their respective functions within. So what is the Java, and this all thing is connected to the database. Now, understand this all thing, the runtime portion of the Java EE product. A Java EE server provides EJB and web container. The runtime portion of the Java EE product, Java EE server provides EJB and web container. EJB container manage the execution of enterprise beans for Java EE application. Enterprise beans and their component container runs on the Java EE server. Web container manages the execution of web pages, servlets, and some EJB components for Java EE application. Okay. Web components and their container runs on Java EE server. Application client's container manages the execution of the application client component. Application client and their container runs on the client. What is applet container? Manages the execution of the applets. Consists of a web browser, Java plugin, and running on the client together. Let's move. Web services support. Web services are the web-based enterprise application that use open XML-based standards and transport protocols to exchange data with clients. Very important definition. What is web services? Web services are web-based enterprise applications that use XML-based standard transport protocols to exchange data with clients. The Java Enterprise Edition platform provides the XML APIs and tools you need to quickly design, develop, test, deploy web services clients that fully interoperate with other web services and clients running on Java-based or non-Java-based applications. To write out web services and clients with Java EE XML APIs, all you do is to pass parameter data to map it. Calls and process the data return for document object, document-oriented web services. ठीक है, तो अभी आपको इसमें यही समझना था, अभी थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाना कि आप ये जो वेब सर्विसेज होती है जो ओपन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, एक्सएमएल बेस्ड ओपन स्टैंडर्ड्स और ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, वही वेब सर्विसेज होती है। क्यों इसका फायदा ये ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्सएमएल जो होती है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सटेंसिबल और टेक्स्ट बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होती है। तो जो यही काम हमारा एक्सएमएल भी करता है, ठीक है। तो XML जो है बहुत हेल्प करता है हमारे क्रॉस प्लेटफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन। अब एक सोप क्या होता है? सोप जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड वेब सर्विस रिस्पांस आर ट्रांसमिटेड एज सोप, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेजेस ओवर HTTP के ओवर होता है ये, to enable a completely interoperable exchange between clients and web services. Very important. हम अब तक क्या समझते थे कि HTTP के थ्रू एक बात चल रही है? नहीं, HTTP के ऊपर हमने क्या बना दिया है जी? जैसी जरूरत वैसा प्रोटोकॉल। सोप क्या करता है? ये सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये क्या करता है?
ये कंप्लीटली इंटरऑपरेबल है, आपस में क्या है, इंटरऑपरेबल है। एक एक्सचेंज होता है क्लाइंट और वेब सर्विस के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पहला आप जाने कि एक्सएमएल यूज तो करते हैं क्योंकि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। दूसरा चीज आप जाने कि सोप बनाया गया है उस फॉर्मेट को मैनेज करने के लिए, और रनिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म और वेरियस लोकेशन और इंटरनेट पे उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन। HTTP is a family request response standards for sending messages over internet, and SOAP is an XML based protocol that follows the HTTP request response model. SOAP क्या है? एक स्टैंडर्ड है जो XML बेस्ड है और वो फॉलो करता है HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, defines XML based envelope describes what is message and explains how to process a message. SOAP portion define a transported message. SOAP क्या करता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कभी आपसे पूछा जा सकता है। XML based encoding rules to express instances of application defined data type within message. Defines XML based convention for the representation to remote services. तो मैंने एक आपको टर्म दिया J2EE में आपके जितने कोर्स स्ट्रक्चर था, फिर आपको टर्म दिया XML, आपको पता था। अभी एक टर्म मिला आपको SOAP जो है, जो उसको फॉलो करता है। एक टर्म और मैं देने जा रहा हूँ, दैट इज WSDL। WSDL होता है वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इज a standard XML format for describing network services। ठीक है, ये एक चीज तो हो गई HTTP के ऊपर SOAP। अब SOAP जो है उसमें वो कनेक्ट होगा जावा नेटवर्किंग से, और यहाँ पे जो जावा नेटवर्किंग उसके अंडर में आएगी वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। डिस्क्रिप्शन इंक्लूड द नेम ऑफ द सर्विस, द लोकेशन ऑफ द सर्विस। क्या क्या चाहिए होता है जी? नेम, लोकेशन एंड वे टू कम्युनिकेट विद द सर्विस। ठीक है, तो आपको एक और टर्म मिला WSDL। WSDL कैन बी पब्लिश्ड ऑन द वेब, वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग की अब तक हम लोग हाइड करते थे, लेकिन WSDL सर्विस के थ्रू हम उस नेटवर्किंग की प्रॉपर्टी को वेब पे पब्लिश भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए हर चीज थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। Classes service provides a tool for generating WSDL specification on the service. अब इसके लिए क्या करते हैं? Uses RPC, remote positional call to communicate with clients. WSDL में देखिए टेक्नोलॉजी वही जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ी थी, RPC, remote positional call, वही यूज होता है। ठीक, अब आगे ये तो हो गई बात हमारी प्रोटोकॉल की, और टेक्नोलॉजीज जो हमें हेल्प करेंगी डिप्लॉयमेंट में, कैसे कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब ये बात करेंगे कि जावा डबल की एप्लीकेशन की असेंबली आपस में कैसे करेंगे, आपस में जोड़ेंगे कैसे, और उसकी डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे। कि जावा डबल एप्लीकेशन इज पैकेज्ड इनटू वन और स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ डिप्लॉयमेंट टू एनी जावा डबल प्लेटफॉर्म component system. Each unit contains a functional component or such as enterprise, web page, servlet और applet। ये क्या है? फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं जो हमारी फंक्शन करते हैं, जो हमको जावा डबल गवर्नमेंट में यही प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये जो आपकी जो सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये इस पे वर्क कर पाता है।
once a Java double unit has to, दूसरा है ऑप्शनल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये डिपेंड करता है कि उसको तो हम कितना ही बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये जावा डबल, इसीलिए मैंने आपको वर्ड पेपर दिखाया कि डिपेंड अपॉन द कंडीशन, हम कंडीशन के हिसाब से हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उससे कम मतलब वेरी हाई हाई लो मॉडरेट लो नो कुछ भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितने डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स को चेंज करना चाहते हैं। ग्रेजुअली भी चल सकते हैं ना इसमें, ठीक है। बस इसमें ये होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको लोकल प्लेटफॉर्म पे रन करना होता है। अब जैसे आपको आपके मोबाइल फोन में ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ता है ना। एक बार ऐप डाउनलोड हो गया तो चीजें अपने आप रन कर जाती ना। एक एक जो है एप्लीकेशन की पैकेजिंग कैसे करते हैं। पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उस पैकेज में होगा, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में होगा, जिससे वो चीजें, जिससे वो पूरा आर्किटेक्चर आपस में कम्युनिकेट कर पाए और कोई भी इशू ना जनरेट हो प्रोसेस में और रिपोर्ट जनरेशन में। हमने पिछली बार अपने अभी कंटेंट में देखा था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि प्रोसेस स्मूथ हो, रिपोर्ट जनरेशन भी स्मूथ हो, और वो कैसे स्मूथ हो कि आपस में इंटीग्रेशन हो चाहिए। तो अब देखिए, a Java double application is delivered in the Java archive file, a web archive file, or an enterprise archive file. A var or r is a standard jar file with a var r extension using jar var r, ठीक है। jar var और er ये जो है क्या करते हैं, jar var ये जो है makes it possible to assemble a number of different Java double application using some of the same component, ठीक है। डिफरेंट एप्लीकेशन को एक ही एप्लीकेशन है, उससे आपने एक बना दिया जी मिडलवेयर, फिर सर्वलेट एप्लीकेशन, फिर जेएसपी अलग वेब पेज एप्लीकेशन। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी आपस में अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है, बहुत सारे एप्लीकेशन मतलब मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट का ऐप बना दिया, ऐप को कनेक्ट कर रहे हैं, सब लोग एक साथ फ्लिपकार्ट पे लग गए हैं, उसमें ये जो फाइल सिस्टम है ये काम आता है, जार फाइल, वेब आर्काइव, इंटरवेयर, है ना, एंटरप्राइज आर्काइव। तो कौन कौन से फाइल सिस्टम होते हैं, ये आपके लिए नया है, जार, वार और ईयर। जार का फुल फॉर्म होता है जावा आर्काइव, वार का फुल फॉर्म होता है वेब आर्काइव, और ईयर का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज आर्काइव। तो आप एक बात समझिए, तो ये देखिए कंपोनेंट बन गया, एक है कोर जावा का फाइल, एक है वेब के डोमेन का फाइल, ठीक है, एक है एंटरप्राइज के डोमेन का फाइल, एंटरप्राइज में जो आपने पूरा कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर डेवलप किया है, और एक एक्सएमएल हमारा है ही है। एक्सएमएल कैसे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ SOAP, और एक कहाँ काम कर रहा है, WSDL पे, जो डेवलपमेंट की प्रॉपर्टी को भी पुश कर दे। तो एक अब आप समझिए कि अच्छा ये बता रहे हैं कि ईयर फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है, एंटरप्राइज जावा फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे होता है असेंबली, उसमें होता है मेटा इंफॉर्मेशन कि एप्लीकेशन कौन कैसे कैसे हैं, क्या क्या है, एप्लीकेशन की स्मॉल इंफॉर्मेशन, उसके अंदर फिर होता है वेब के कौन कौन से मॉड्यूल है, फिर आता है जी एप्लीकेशन के क्लाइंट, ठीक है, कौन कौन से हैं, रिसोर्स के अडेप्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिसोर्स यूज करेंगे, जेबी तो क्या क्या मॉड्यूल यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या फायदा होता है। There are two types of deployment descriptors are Java EE or runtime. A Java EE descriptor defined whether Java EE specification can be used to configure deployment settings on any Java EE compliant implementation. Java EE के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए अगर कोई काम हम करते हैं
तो उसको कहते हैं जावा डबल ई डिप्लॉयमेंट। रन टाइम डिप्लॉयमेंट क्या होता है जी, समझने वाला समझिए। A runtime deployment descriptor used to configure a Java EE implementation specific parameters. इस ठीक है, ये भी हो गया। जैसे हमारा जो सर्वर यहाँ पे यूज हो रहा है वो कौन सा है, रन टाइम इंफॉर्मेशन। जो सर्वर हम यूज करेंगे क्लास के सर्वर, और रन टाइम इंफॉर्मेशन को मैनेज कर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सन मॉड्यूल टाइप डॉट एक्सएमएल मेटा डायरेक्टरी। अच्छा, ये अब आप देखिए थोड़ा थोड़ा अब बेसिक्स पे आ रहा है कि जब जावा डबल ई मॉड्यूल में कंटेनर टाइप होता है, वन कंटेनर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ऑफ दैट टाइप। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर जब भी आप जावा डबल ई के बारे में बात करेंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आएगा कंटेनर का। ठीक है, मैं अभी वर्ड मीनिंग की बात कर रहा हूँ जिससे आपको एकदम से अलग ना लगे जब मैं पढ़ाऊं। एक एंटरप्राइज मॉड्यूल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। A Java EE module can be deployed as standalone module. Can be मतलब ये जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन ही करा जाए, अलग से भी कर सकते हैं। और उसको कैसे फॉलो करेंगे, स्टैंड अलोन। अब देखिए ये हमारा कंटेंट है, जावा EE मॉड्यूल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। ठीक, आप स्टैंड अलोन बना सकते हैं। और जावा EE मॉड्यूल्स हमारे कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला मॉड्यूल है EJB, थर्ड यूनिट फर्स्ट टॉपिक, which contains the class files for enterprise beans and EJB deployment descriptor. EJB modules are packed as jar file, ठीक है। तो EJB के पास क्या होता है जी, उनके पास अपना एक क्लास फाइल होता है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, और एक कैसे होते हैं, जार फाइल एक्सटेंशन। वेब मॉड्यूल विच कंटेन्स सर्वलेट फाइल, दूसरा मॉड्यूल आता है जी वेब मॉड्यूल। हमने आपसे कहा था 3 तरीके का मॉड्यूल, एंटरप्राइज, जावा और वॉर। तो वेब मॉड्यूल में क्या होता है जी, सर्वलेट आता है। वेब फाइल सपोर्टिंग GIF, HTML5, वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर्स। वेब मॉड्यूल्स आर पैक्ड एज जार फाइल विथ अ वॉर एक्सटेंशन। जार फाइल होती है लेकिन उसमें एक्सटेंशन क्या डाली जाती है, WAR, वॉर। ठीक, अब आता है जी एप्लीकेशन मॉडल, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, चाहे जो हम URL से देखें, which contains class files, application, client deployment descriptor, application kind module are packed with the jar file. EJB हो गया jar file, servlet हो गया war file, ठीक है, extension का war file। अब आता है जी resource adapter modules, contain all Java interfaces, classes, native libraries and other document along with resource adapter deployment, ठीक है। resource adapter बहुत important चीज है कि भाई कि रिसोर्स आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, और ये इंटरफेस इंफॉर्मेशन सर्विसेज में रिपोर्ट जाती है और ये फाइल जाती है जार फाइल विथ एन रार। होती जार फाइल है लेकिन उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, रार। तो ये समझने के लिए होता है कि जब हमारे पास जार फाइल आई तो समझ में आ गया कि ये एप्लीकेशन का हो सकता है, एंटरप्राइज हो सकता है। जब हमारे पास वार फाइल आएगी तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है, कि ये भाई साहब सर्वलेट का इस तरफ से कुछ मामला है। जब हमारे पास रार फाइल आती है ना, रार रिसोर्स अडेप्टर, तो हमको समझ में आता है कि रिसोर्स की कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जब हम डिप्लॉय करते हैं और जब हम काम करते हैं ना, तो हमको ज्यादा समझ में आता है। ठीक, ठीक, तो आप इसको समझिए कि यहाँ पे जो कह रहा है ये टूल देखो, रिसोर्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट allows Java application component to access and interact with underlying resource manager of EIS। ठीक है, हमको डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से कंपोनेंट्स मिल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो मैनेज होंगे ना। वो जो मैनेजमेंट है वो रिसोर्स अडेप्टर के थ्रू होता है अंडर द बैनर ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, वो एक स्पेसिफिक रिसोर्स मैनेजर होता है, या एक रिसोर्स मैनेजर होता है जो डेटाबेस और एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंडर में उस चीज को मैनेज करता है। तो यही है आपका, ये आपकी इंफॉर्मेशन की कैसे मैनेज होता है जी, तो मैनेज होता है जावा EE
कनेक्टर आर्किटेक्चर से। अच्छा, इतना डिटेल वैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन आप जान जाइए, कोर्स में तो व्हाट है खाली, हम आपको वाई तक ले जा रहे हैं, व्हेन तो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, रिसोर्स मैनेजर ऑफ एन EIS। आप आराम से चलिए। अब इसके ये जो होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिक्योर स्केलेबल मैसेजिंग सर्विस में होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेन काम है कि इंफॉर्मेशन के एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करना, जिससे एंड टू एंड बिजनेस इंटीग्रेटर है, मेन काम यही है। ठीक है, और ये लिखा है ना JXWAS और जावा EE मॉडल। ठीक है, तो ये XML ये सब थोड़ा हाई एंड है, इसको आप अभी इस पर ध्यान मत दीजिए, बस ये जानिए कि ये चीजें होती हैं, आपस में कनेक्ट होती है, रिसोर्स मैनेजर आपस में उसको मैनेज करता है। ठीक, प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स कौन कौन है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा था कि भैया एक सर्वर को प्रोवाइड करने के लिए बड़े सारे कंपनी अवेलेबल है। अब आप आइए कि टूल प्रोवाइडर इज द कंपनी और पर्सन क्रिएट्स डिप्लॉयमेंट असेंबली एंड पैकेजिंग द टूल्स फॉर द कंपोनेंट प्रोवाइडर असेंबलर एंड डिप्लॉयर। तो टूल के अंदर क्या क्या काम होगा, एक टूल के अंदर क्या क्या काम होगा, टूल जी ये टूल देखा जाएगा कि हमारे जेटो डेवलपमेंट टूल में कौन कंपोनेंट प्रोवाइडर है, फिर हम देखेंगे कौन हमारा असेंबलर है, फिर देखेंगे हमारा डिप्लॉयर। ठीक है, अब आप आइए एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर। एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइडर इज अ कंपनी और पर्सन हु क्रिएट्स वेब कंपोनेंट, सर्वलेट, enterprise beans, applets, application client uses in the Java and application। ये हो गया कॉग्निजेंट जो मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अब कॉग्निजेंट कहता है कि जी हमारा EJB है, हमारा EJB कैसे होगा, enterprise Java beans developer performs the following task to deliver an EJB jar file that contains one or more enterprise beans। तो EJB में क्या होता है, एंटरप्राइज बीन्स। तो EJB में एंटरप्राइज बीन्स होता है, तो इसके पहले तो एक बीन होगा ना। तो अब आपको कॉन्सेप्ट टूट गया, हमें पढ़ना पड़ेगा बीन, फिर पढ़ेंगे एंटरप्राइज जावा बीन, फिर पढ़ेंगे एंटरप्राइज जावा, फिर पढ़ेंगे एंटरप्राइज बीन्स, फिर पढ़ेंगे एंटरप्राइज जावा बीन्स क्या होता है, और उसका जार फाइल स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। जार फाइल में क्यों डालते हैं हमको समझ में आ गया, क्योंकि ये मिडलवेयर है और बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए उसको रखना पड़ता है। ये क्या करता है जी, राइट हम करते हैं उसके सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, इसमें डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, पैकेजिंग कैसे होती है डॉस क्लास फाइल्स के थ्रू, डिस्क्रिप्टर क्या है कि JB जार फाइल। वेब कंपोनेंट के डेवलपर वेब, ये हो गया एंटरप्राइज जावा बीन्स। वेब कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो वेब कंपोनेंट हमें पता चलते हैं वॉर फाइल के थ्रू। यहाँ पे भी हम राइट और कंपाइल करते हैं सर्वलेट का कोड, क्या करते हैं सर्वलेट का कोड, और फिर राइट जावा जरूर फेसेस JSP एंड HTML फाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वॉर फाइल वेब कंपोनेंट में ही आ जाता है हमारा सर्वलेट और JSP। फिफ्थ एप्लीकेशन कंपोनेंट में है आपका EJB, स्पेसिफाइज द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर ऑप्शनल। फिर आता है जी पैकेजेस, पैकेजिंग कैसे करते हैं, डॉट क्लास, पैकेजेस में क्या होता है डॉट क्लास, डॉट JSP जावा सर्वर पेजेस के लिए, HTML फाइल भी होती है, और अंदर द डिस्क्रिप्टर वॉर फाइल, वॉर फाइल के अंदर डॉट क्लास फाइल, डॉट JSP फाइल, डॉट HTML फाइल होती है। ठीक, अब आता है जी एप्लीकेशन क्लाइंट डेवलपर। ये एप्लीकेशन कंपोनेंट के अंदर एंटरप्राइज आ रहा है, फिर वेब आ रहा है, एप्लीकेशन क्लाइंट के बाद क्या देखिए क्या आता है। क्लाइंट के समय जी कुछ नहीं है, उनको जार फाइल में हमको परफॉर्म करना होता है, यहाँ पे हम कंपाइल और सोर्स लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, क्लास फाइल होता है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, जो हमारा आजकल एंड्रॉयड है ना वो इसी पे काम करता है। अब देखिए तीन तरीके का एप्लीकेशन हो गया, उसको असेंबली करेंगे तो एप्लीकेशन असेंबलर चाहिए, वो एप्लीकेशन असेंबलर होता है हमारा ये बस। ये क्या करेगा, असेंबली करेगा जार और वॉर फाइल की, और हमें फाइनली वो ठीक है हमें वो डेटा पूरा मिल जाएगा एक एंटरप्राइज एडिशन में। तो ये मुझे समझाना था और ये बताना था कि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटेड डॉक्यूमेंटेशन है और ये मैनेज होता है थ्रू एप्लीकेशन डिप्लॉयबर और एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो ये पूरा J2EE का एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, क्या किस हिसाब से कितनी फाइल्स बनती हैं, और इसमें क्या क्या चीज नया था, ये मैंने आज डिस्कस किया आपसे। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि
इसको थोड़ा सा घर पे जाके जितने टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और मैंने आपको देख ही रखा है कि आपको कैसे